وہ ثانیہ کو شکر پڑیاں لے کے جانے کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی تیار ہو کر لاؤنج میں آیا تو سینٹرل ٹیبل پہ رکھا نیوز پیپر نظر آ گیا۔ ثانیہ کے آنے کے انتظار میں وقت گزاری کے طور پر وہ نیوز پیپر دیکھنے لگا۔ تائی جان کچھ بولتی ہوئی وہاں آئیں۔ اون غیر ارادی طور پر متوجہ ہوا۔ پیچھے منہ بسورتی ارم تھی۔ کہا تو تھا میں نے فرحان کو، اب طبیعت ٹھیک نہیں اس کی تو۔ کتنی اچھی دوست ہے میری، آپ کو پتا ہے نا ٹائم ہی کتنا لگتا ہے، یہاں سے محض 6-7 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ ارم نے احتجاج کیا تو تائی جان اون کے سامنے والے صوفے پر سر تھام کے بیٹھ گئیں۔ ہاں میری دفعہ بس سر پکڑ لیا کریں آپ، ہر دفعہ وہ ایسے ہی کرتے ہیں، کتنی بار کہا ہے کہ مجھے میری گاڑی لے دیں، محتاجی تو ختم ہو۔ ارم بگڑ کر بولی تو تائی جان نے ملتجئہ انداز میں اون سے کہا، اون میرے بچے، بہت مہربانی ہوگی تمہاری، اس لڑکی کو ذرا اس کی دوست کے گھر چھوڑ دو ورنہ یہ سارا دن میری جان کھاتی رہے گی۔ ابھی میں اور ثانیہ باہر نکل رہے ہیں تائی جان، یہ ہمارے ساتھ ہی چلی جائے گی، اون نے کہا۔ ثانیہ تو ابھی سوئی ہوئی ہے، میری دوست کے گھر کا راستہ تو 5 منٹ کا ہے، پلیز۔ ارم سخت مجبور نظر آ رہی تھی۔ ہاں بیٹا مہربانی تمہاری، تائی جان نے پھر سے کہا تو اون نے گہری سانس بھری۔ مہربانی کی کیا بات ہے تائی جان، چلو اٹھو، اون نے کہا تو ارم کھل اٹھی۔ اون کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ 10-15 منٹ میں فارغ ہو کر لوٹ آئے گا، مگر ارم کو راستے میں بیکری پہ رک کر کیک لینا تھا۔ بہن کی شادی پہ انوائٹ کرنے جا رہی ہوں۔ ارم نے توجہ پیش کی تو اون نے دل ہی دل میں جذبہ ہوئے طنز کیا، اتنی اچھی دوستی تو 2 دن پہلے انوائٹیشن دے رہی ہو، بری ہوتی تو کیا کرتی، آج ہی سیالکوٹ سے آئی ہے وہ۔ ارم نے تحمل سے اس کا طنز برداشت کیا۔ راستے میں ٹریفک جام اور اس پر مستراز یہ کہ ارم کی دوست کے گھر کے باہر اتنا بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ اوہ نو، اون بھی کوفت کا شکار ہوا۔ ارم نے اپنے دوست کو کال کی تو اس نے بتایا کہ وہ سیالکوٹ سے نکلنے میں لیٹ ہو گئی ہے۔ اون کو ٹینشن ہونے لگی، موبائل بھی چارجنگ پہ لگا چھوڑ آیا تھا ورنہ ثانی کو کال ہی کر لیتا۔ یہی کال تم گھر سے نکلنے سے پہلے کر لیتی تو اچھا ہوتا۔ اون کو واقعی غصہ آیا تھا، مگر ارم کو کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ چلو اسی بہانے تمہارے ساتھ لانگ ڈرائیو بھی ہو گئی۔ وہ تایا جان کی گاڑی میں آئے تھے جو انہوں نے شادی کے دنوں میں گھر کے لیے مختص کر رکھی تھی۔ تمہاری مہربانی ہوگی جو تم یہ بہانے نہ ہی تلاشا کرو، گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے انہوں نے تلخی سے کہا۔ ابھی کل رات کی ارم کی بھی باقی سے بھول ہی نہ تھی اس پر متضاد ثانیہ کا ناراض ہو جانا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم دونوں بھی کوئی دشمنی نہیں رہی کبھی، پھر وجہ پوچھ سکتی ہوں اتنی تلخی کی، ارم نے شکوہ کناں انداز میں کہا۔ یہ تم اپنے آپ سے اپنے انداز سے پوچھو، اون نے سختی سے کہا۔ کیا کسی کو پسند کرنا جرم ہے؟ ارم نے جیسے بڑی دل گرفتگی سے پوچھا۔ اون جذبز ہوا، مگر اسے یوں جیسے یہ ارم کا سمجھانے کا صحیح موقع ہے۔ نہیں، لیکن یہ جب پسندیدگی محض ایک طرف سے ہو تو انسان کو اپنی انا اور عزت نفس کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے۔ اون نے صاف گوئی سے اپنی لا تعلقی ظاہر کی تو ارم تب گئی، مگر بظاہر بڑی سادگی سے بولی، ہاں جیسے تم اور ثانیہ۔ اون نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں اور ثانیہ کہاں سے آگے اس مثال میں؟ تم بھی تو یک طرفہ محبت کا شکار ہو اون۔ میں کیا، سبھی جانتے ہیں پہلے تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے اور اب وہ اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتی، ارم نے آرام سے کہا۔ اون کی کن پٹیاں تک سلگ اٹھیں، اسے لگا جیسے اس کا اور ثانیہ کا رشتہ لوگوں کے لیے کھلی کتاب بن چکا ہو۔ غلط فہمی ہے تمہاری، وہ پرزور انداز میں بولا۔ ابھی تمہارا ٹنٹنا بیچ میں نہ آتا تو ہم دونوں شکر پڑیاں جانے والے تھے، حالانکہ کل تم نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی خراب حالات کرنے میں۔ ارم لب کچلتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ دونوں گھر کے قریب پہنچ چکے تھے کہ انہوں نے فرحان کی بڑی گاڑی میں ثانیہ اور نیلم کو جاتے دیکھا۔ اون نے بے یقینی سے ثانیہ کو دیکھا، اس نے بھی اون اور ارم کو آتے دیکھ لیا تھا مگر کوئی رسپانس نہیں دیا۔ گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ ارم کے دل میں پھول جھڑیاں سی چھوٹیں۔ یہ لو، ثانیہ کا تو کوئی اور ہی پروگرام تھا، وہ بھی ساختہ ہی بولی۔ گاڑی باہر ہی روک کر نیچے اترتا اون کو رایا تھا، شٹ اپ! اور اب وہ دھول اڑاتی گاڑی دیکھتا وہ زوردار انداز میں دروازہ بند کرتا اندر چلا گیا۔ وہ سلگ رہا تھا، تل ملا رہا تھا، ثانیہ ایسی حرکت کرے گی اون نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بھائی میں نے تو بہت کہا کہ ابھی 10 منٹ میں اون واپس آ جائے گا، مگر تمہیں تو پتہ ہے نا کتنی سدھی اور منہ پھٹ ہے، کہنے لگی آج کا پروگرام تھا باہر جانے کا تو آج ہی جائے گی، اون نہ صحیح فرحان صحیح۔ تائی جان نے سارا ملبہ ثانیہ پر ڈال دیا۔ اون نے لب بھینچے، سوری اون، میری وجہ سے۔ ارم کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اس کے الفاظ سے میل نہ کھاتی تھی۔ اون سر جھٹکتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ کر فاتحانہ انداز میں مسکرانے لگے۔
वो नीलम और फरहान के साथ चक्कर पड़ियाँ तो आ गई थी, मगर उसके दिल को एक मुसलसल बेचैनी लाहक थी। ये ठीक है कि इसे ऑन के यूं इरम के साथ निकल जाने पर गुस्सा आया था, मगर शायद इसे यूं बदला नहीं लेना चाहिए था। शक्कर पड़ियाँ इस्लामाबाद का वो मकाम है जहाँ से सारा इस्लामाबाद शहर दिखाई देता है। दोपहर का खाना फरहान ने बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खिलाया। तब तक सानिया खुद को समझा चुकी थी कि उसने नीलम और फरहान की ऑफर कबूल करके अच्छा ही किया। ऑन की शक्ल देखकर वक्ती तौर पर इसे जो बेचैनी सी लाहक हुई थी वो अब खत्म हो चुकी थी। बजाय रात की गलतफहमी दूर करने के सुबह होते ही वो फिर इरम के साथ टूर पर निकल गया था। शाम गहरी हो रही थी जब सानिया ने फरहान को वापसी का कहा, वरना नीलम तो इरम के बगैर यूं आज़ादाना ट्रिप से बहुत खुश थी। कैसा लगा इस्लामाबाद? फरहान ने जगमगाती निगाहों से उसे देखा, वो जो बहुत बेनियाज और लापरवाह सी थी। अच्छा है, कुछ संजीदा और मगरूर सा था। ये सानिया का तजिया था। अरे, फरहान के साथ नीलम भी हंसी। ये आपने कैसे कह दिया? हम तो ना संजीदा हैं और ना मगरूर। हाँ, जो खुद मगरूर हो उसके लिए संजीदा ज़रूर हो सकते हैं। फरहान ने उसकी बात से लुत्फ लेते हुए कहा, मगर इसी वक्त सानिया का मोबाइल बजने लगा तो अपने शोल्डर बैग की तरफ मुतवज्जे हुई। फरहान बदमज़ा हुआ। सानिया ने मोबाइल निकाल के देखा तो ऑन की कॉल थी। इसका दिल बेतरतीबी से धड़क उठा। एक्सक्यूज़ मी? ऑन की कॉल है। वो मोबाइल थामे कदरे साइड पर चली आई। कहाँ हो तुम अभी तक? वो तेज़ लहजे में पूछ रहा था। यूं ही सैर व तफरीह के लिए निकले थे, वो लापरवाही से बोली। ऑन ने उसकी बात काटी। यूं ही? तुम मेरे बगैर अनजान शहर में यूं ही किसी के साथ भी सैर व तफरीह के लिए निकल गई? ऑन के अंदाज में दबा दबा गुस्सा था, मगर इसके अल्फाज सुनकर सानिया के कानों से धुएं की लपटें निकलीं। यहाँ हर किसी को आज़ादी है किसी के भी साथ जाने की, मिस्टर ऑन अब्बास। तुम घर आओ फौरन सानी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वो दांत पीस कर बोला तो सानिया ने गुस्से से लाइन ही ड्रॉप कर दी। दूर खड़े नीलम के साथ इधर उधर की बातों में मसरूफ फरहान गाहे बगाहे फ़ोन पे बात करती सानिया के तासुरात भी देख रहा था। वो खुद को नॉर्मल करते उनकी तरफ आई। खैरियत? जी, खफा हो रहा था ढोल की शुरू होने लगी और हम तीनों ही मौजूद नहीं हैं। सानिया ने बात बनाई। ओहो, आज तो मेरी फ्रेंड्स ने भी आना था, याद ही नहीं रहा। नीलम चिल्लाई। अच्छा भाई चलो, फरहान बादल ना खास्ता बोला तो वो दोनों इस मईत में गाड़ी की तरफ चल दी। मुइस कुछ गुनगुनाता हुआ अंदर दाखिल हो रहा था। आज की शाम रुबाब की संगत में बहुत हसीन गुजरी थी, मगर कॉरिडोर का दरवाज़ा खोलते ही अंदर से दरवाज़ा खोल के आने वाला उसे टकरा गया। सॉरी, वो गड़बड़ाया, मगर फिर अभिया पर नज़र पड़ते ही ठहर सा गया। अभिया की रंगत फक पड़ गई थी। वो तेज़ी से वहाँ से चली जाना चाहती थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुइस के अंदाज में बेयकीनी तो थी ही, मगर ये सवाल पूछते हुए माथे पे नागवारी की लकीरें भी फैल गईं। वो मुझे आंटी ने काम से बुलाया था, अभिया ने बामुश्किल कहा। उसकी इज्जत नफ्स सिसकने लगी थी। मुइस हद दर्जा हैरान हुआ, इतना कि नागवारी कहीं दूर चली गई। मामा ने? अभिया ने इस बात में सर हिलाया। मगर क्यों? आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। वो बदिखते तमाम कहती हवा के झोंके की माने उसके पास से गुजर गई। वो इस कदर हैरान था कि कई लम्हे उसी पोजीशन में खड़ा रह गया। फिर तेज़ कदमों से चलता सफीना के कमरे की तरफ आया तो वहाँ एराज और ज़ारा को मामा के पास बैठा देखकर चुप सा हो गया। सलाम दुआ के बाद माँ का चेहरा देखा, मगर वहाँ इत्मीनान था। वो तीनों मामूल की खुशगपियों में मसरूफ़ थे, मगर मुइस अहमद के दिल में इज़्तिराब की लहरें मौजूद थीं। वो खामोश बैठा अल्फाज तरतीब देता रहा कि माँ से कैसे पूछे कि उन्होंने अभिया को यहाँ क्यों बुलाया था। वैसे भाई, मामा के इंतखाब की दाद देनी पड़ेगी। नई मुलाजमा देखी है आपने कैसे छान पटक के रखी है? एराज माँ को छेड़ रहा था। सफीना बेगम ने निगाहें गलत अंदाज बड़े बेटे पर डाली। ज़ारा भी चुप सी होगी। अगर एराज को नहीं पता था तो क्या वो तो जानती थी ना, मगर क्या मुइज़? वो कन अखियों से मुइज़ का संजीदा चेहरा देखने लगी। फिर भी काम करने वालियों के चेहरे नहीं, इनका काम देखा जाता है। सफीना बेगम ने एराज से कहा तो अंदाज पुरसकून था। फिर भी मामा, खूबसूरती तो प्लस पॉइंट होती है ना। एराज अभी भी मजाक के मूड में था। जूता सोने का भी हो तो पाँव में ही आता है एराज, सर पे नहीं रखा जाता। वो रसान से बोली। फिर मुइज़ को मुखातिब किया। तुम इतने खामोश क्यों हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी। मुइज़ ने ज़ारा और एराज पर चट्टी नज़र डाली और माँ से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर मेरी शादी की बात करनी है तो आप मेरे सामने भी कर सकते हैं, मुझे शर्म नहीं आएगी। एराज शरारत से बोला तो मुइज़ मुस्कुरा दिया। वो तो सभी जानते हैं कि तुम कितने बेशरम हो, तुम्हें खुद से ऐलान करने की ज़रूरत ही नहीं। ज़ारा उसके शाने पर धप लगाती उठ गई तो वो भी आ भर के उठा। ऐलान कर करके भी अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हो रहा।
فکر مت کرو، دونوں بھائیوں کی اکٹھی کروں گی اور وہ بھی ایسی دھوم دھام سے کہ دنیا دیکھے گی۔ سفینہ بیگم نے اسے تسلی دلائی۔ اعراز ایک دم چپ ہوا، بات کا رخ مڑنے لگا تھا۔ چلو بلی، ذرا چل کے گرما گرم کافی پلاؤ، پھر اس معاملے پر بھی غور کرتے ہیں کہ دھوم دھام کا ریشو کیا ہونا چاہیے۔ وہ فوراً ہی زارا کو ساتھ لیتا کمرے سے نکل گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ سفینہ سنجیدہ ہو گئی، اس کا یوں چپ کر کے آ کے بیٹھ جانا انہیں کھٹک رہا تھا۔ وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ کون؟ سفینہ نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ابھی اسے گھر سے نکل کے نیکسی کی طرف جاتے دیکھا ہے ماما، وہ اس گھر میں کیوں آئی تھی؟ وہ سلگ اٹھا۔ پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے سفینہ بیگم مسکرائیں۔ اچھا وہ؟ انہوں نے آہستہ آہستہ پانی کے 2 گھونٹ بھرے اور گلاس واپس رکھ کر ڈھک دیا، پھر موئز کی طرف متوجہ ہوئیں۔ وہ میں نے نئی ملازمہ رکھی ہے۔ وہ بے حد اطمینان سے بولی تو موئز نہ سمجھی کہ عالم انہیں دیکھنے لگا۔ میں ابھیا کا پوچھ رہا ہوں۔ میں بھی اسی کا کہہ رہی ہوں۔ نذیرہ کے ساتھ گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے رکھ لیا ہے میں نے اسے، تاکہ جب تک وہ کسی طرف نہیں لگ جاتی اپنی حیثیت یاد رکھے۔ موئز کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے۔ چند لمحوں کے لیے تو جیسے وہ قوت گویائی ہی کھو بیٹھا تھا، جبکہ سفینہ بیگم اس کی طرف متوجہ تھیں۔ وہ اس کے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار تھیں۔ اون نے پہلے تو مارے غصے کے ثانیہ کو کال نہیں کی، مگر جب شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو اس کا غصہ تشویش میں بدلنے لگا۔ لاؤنج میں ڈھولکی رکھی گئی اور آہستہ آہستہ سب جمع ہونے لگے۔ وہ باہر لان میں آئے اور ثانیہ کو کال کر کے فوراً گھر آنے کو کہا، مگر ثانی کا انداز بہت غصہ دلانے والا تھا۔ وہ فون بند کر کے بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اسے ساری کی ساری یہ غلطی اپنی نظر آ رہی تھی۔ مجھے ارم کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہیے تھا، صاف لفظوں میں تائی جان کو انکار کر دیتا۔ اور یہ فرحان کا بچہ، اب اس کے سر کا درد کہاں گیا؟ بہن کو لے جاتے تکلیف ہو رہی تھی، اور یہ ثانی، ساری غلطی اس کی ہے۔ آخر میں آ کے اس نے سارا ملبہ ثانی کی غلطی پر گرا تھا۔ تم یہاں تارے گننے کیوں نکل آئے؟ ارم کی آواز نے اسے ٹھٹکا دیا۔ برآمدے کی سیڑھی پر بیٹھا اکتاہٹ سے موبائل کے وال پیپر چیک کرتا اون بری طرح چڑھ گیا تھا۔ تم میرا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی؟ تم یہاں مہمان ہو اون، اور تمہارا خیال رکھنا ہمارا فرض۔ وہ مسکرائی۔ اچھی خاصی جاذب نظر لڑکی تھی، مگر اس کے انداز اون کو زہر لگتے تھے۔ تم نے میرا خیال رکھنا خود پر فرض کر لیا ہے، اور کسی نے تو اتنا خاص پروٹوکول دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اون نے طنز کیا تو وہ سینے پہ بازو لپیٹے مسکراتے اس کے عین مقابل آ کھڑی ہوئی۔ تمہاری زندگی میں جو بھی آئے اسے تمہارا اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے اون، کیونکہ تم اسی قابل ہو۔ مجھے کس کے خلاف کرنا چاہتی ہو ارم؟ اور بائی دا وے، اپنے بارے میں اتنی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں جتنی کہ تم میرے بارے میں غلط فہمی کا۔ وہ قطعی متاثر ہوئے بغیر ماتھے پہ تیوری ڈال کے بولا تو ارم نے گہری سانس بھری۔ میں کیوں تمہیں کسی کے خلاف کروں گی؟ حالات تمہارے سامنے ہیں۔ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے پہلے اس کے دل میں اپنے لیے موجود جگہ کو ضرور دیکھ لینا چاہیے اون عباس، ورنہ بڑی خواری ہوتی ہے۔ وہ ذومانی انداز میں بولی۔ اون بری طرح تپا اور اسے کچھ سخت الفاظ کہنا چاہتا تھا، تبھی چوکیدار گیٹ کھولنے لگا۔ فرحان کی گاڑی اندر آ رہی تھی۔ اون خاموشی سے ادھر دیکھنے لگا۔ ارم اندر کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کے نیچے اترتی ثانیہ نے پہلے ارم کو اون کے پاس کھڑے بھی دیکھا تھا، اندر جاتے ہوئے بھی۔ بہت شکریہ فرحان بھائی، بہت مزہ آیا آج۔ ضرورت نہیں تھی، مگر ثانیہ نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا۔ واقعی میں نے بہت انجوائے کیا، مگر لیٹ ہو گئی ہیں، امی سے ڈانٹ پڑے گی، میری فرینڈز بھی آ چکی ہیں۔ نیلم اندر بھاگی تھی۔ فرحان مسکراتا ہوا اون کی طرف بڑھا، مگر اس وقت تک وہ اٹھ کر اندر جا چکا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ فرحان نے حیرت سے ثانیہ کو دیکھا تو وہ لب بھینچ کر مسکرا دی۔ اسے ہو جاتا ہے کبھی کبھار کچھ۔ وہ دونوں اکٹھے اندر آئے تھے۔ ثانیہ نے سب پر ایک نظر ڈال کر ہی دیکھ لیا کہ ان میں اون کہیں نہیں ہے۔ لاؤنج میں خوبصورتی سے ڈھولک بجنے لگی تو ایک سما بن گیا۔ تائی جان نے ثانیہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اون کے یکے بعد دیگرے کئی میسیجز آئے، مگر ثانیہ وہاں بیٹھی تالیاں پیٹتی رہی۔ اور پھر آخری میسیج، ثانیہ آ رہی ہوئی ہے، پھر سب کے بیچ سے تمہیں اٹھا کے لاؤں؟ ثانیہ نے دانتوں پر دانت جمائے اور اٹھ گئے۔ ابھی آتی ہوں، بیگ رکھ کے سلیپر پہنا ہوں، جوتا تنگ کر رہا ہے، اس نے جھک کے تائی جان کے کان میں کہا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ اون اوپر کوریڈور کے سرے پہ اپنے کمرے کے باہر ہی محو انتظار تھا۔ ثانیہ اسے دیکھ کر پھر سے غصے میں آئی۔ شرم تو نہیں آتی یوں سب کے درمیان سے اٹھا کر بلاتے؟ وہ بمشکل سب سے نظر بچا کے اوپر آئی تھی۔ اون نے اس کا ہاتھ تھاما اور تقریباً کھینچتے ہوئے ٹیرس پہ لے آیا۔ اون چھوڑو مجھے، کیا بدتمیزی ہے؟ وہ چلائی۔ اور جو حرکت تم نے کی ہے وہ بہت تمیز میں شمار کی جاتی ہے۔ ثانیہ کو کیا غصہ آتا، ہمیشہ ٹھنڈا رہنے والا اون عباس اس وقت بھڑ بھڑ جل رہا تھا۔ سلگ کر بولا، مسئلہ کیا ہے تمہارا اون؟ میں یہاں انجوائے کرنے آئی ہوں، یہ تم نے ہی باور کرایا تھا مجھے۔ وہ غصے سے بولا، یہ
ये इंजॉयमेंट है तुम्हारी सानिया? एक ना महरम के साथ पूरा दिन सैर व तफरीह में गुजार दिया। वो तासुब से बोला। बात तो सच थी, मगर सानिया के तलवों पर लगी सर पे जा बूझी। हाँ, सिर्फ मर्द ना महरम होते हैं, औरतें तो ना महरम होती ही नहीं। और तुम जो कल टेरिस पे इरम के साथ कर रहे थे वो? शट अप सानिया, वो तेज लहजे में बोला। ओके, मैं शट अप हो जाती हूँ, लेकिन फिर तुम्हें भी मुझसे इन्वेस्टिगेशन करने का कोई हक नहीं पहुँचता, सानिया ने कतियत से कहा। और ने बेख्तियार आगे बढ़कर सख्ती से इसका बाजू थामा और दांत कचकचाकर हल्के से झटकर से इसे हिलाया। तुम ये मत भूलो कि हमारा आपस में क्या रिश्ता है। रुखसती ही बाकी है सानिया और अब्बास, वरना तुम मेरी बीवी होती हो, जिम्मेदारी हो मेरी। सानिया के चेहरे से आग की लपटें निकली। और तुम अपने दफा की में बात भूल जाते हो। क्या लगती है इरम तुम्हारी, जो आधी रात को तुम्हारे हाथों में हाथ डाले? सानिया को भी तरार आया था, मगर इससे पहले गुस्से में आकर औन ने उसे पीछे धकेल दिया। बकवास मत करो सानी, हर दिखाई देने वाली चीज़ असलियत नहीं होती, कुछ बातों की वजाहत ज़रूरी होती है। वजाहत वजाहत हमेशा झूठी बातों की होती है और अब्बास, सच को वजाहत और सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं होती। इसे ऑन के यूं धुतकारने वाले अंदाज पर शदीद हिदक महसूस हुई थी, तो इसके अंदर सोई मुंह पर देहातन पूरे तमतराक से बेदार हो गई। जब सामने तुम जैसे आंखों वाले अंधे हों तो फिर सच को भी गवाही और वजाहत की ज़रूरत पड़ जाती है। वो चटका था। अच्छा, वो तमस्कर भरे तंजिया लहजे में बोली। तो क्या वजाहत दोगे तुम? वो ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ चिमट गई थी, हाथों में हाथ डाले जूलियट बने। वो बात को कहाँ से कहाँ ले गई। ऑन का दिमाग घूमने लगा। दफा हो जाओ यहाँ से सानी, वरना मैं हाथ उठा बैठूंगा, दांत पीस कर कहा। मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है सफाइयाँ पेश करने की। तुम जैसे लोग झूठी अना के मारे अपने मकाम से एक सीढ़ी भी नीचे नहीं उतरना चाहते, चाहे कोई नीचे ही कितना ही प्यारा और खड़ापन लिए खड़ा हो। और ने तासुब से कहा और फिर लब भींचता, खुद को मजीद कुछ कहने से रोकता पलट गया। इसके कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सांझी ने टेरिस पे भी सुनी थी। वो कितनी ही देर इसी काले जहन कैफियत में खड़ी रह गई थी। ये आप क्या कर रही हैं मामा? मुइज़ ने बेबसी से पूछा था। क्या कर रही हूँ? सफीना ने इत्मीनान से उसकी तरफ देखा। वो उलझा हुआ नजर आ रहा था। मामा, वो लड़की इस घर में एक वसीयत के तहत आई है। वसीयत के तहत या रिश्ते के? सफीना बेगम का तंज कड़ा था। मैं बार बार अपनी मजबूरी का रोना नहीं रोऊंगा मामा, लेकिन इतना ज़रूर समझ लें कि अगर मैं उस फैसले से इनकार करता तो अब्बू को अपनी ज़ात को इस मामले में घसीटना नागज़ीर था। मुइज़ ने ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए हकीकत का आईना उनके सामने ला रखा। अगर वो लड़की तुम्हारे बाप के रिश्ते से भी इस घर में आती तो मैं इसे यूं ही जूती की नोक पर रखती, समझे तुम? वो फनकारी। आज या कल इसे यहाँ से चले जाना है। मामा प्लीज़, आप इस मामले को इतना सर पर सवार ना करें, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुइज़ ने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा। इंटरेस्ट नहीं था तो किसी दारुल अमान में फेंक आते, भले फिर इसका खर्चा लगा देते वहाँ। वो तेज़ लहजे में बोली तो मुइज़ ने उन्हें याद दिलाया। वो इस घर में भी हिस्सेदार है मामा। सफीना बेगम ने दांत कचकचाए। तुम्हारे तो बाप को अब मैं क्या कहूँ, वही मेरे लिए अजाब खड़ा कर गया है। कभी कभार हम किसी की गई नेकियों को पलड़े में तोलते हुए डंडी मार जाते हैं। बाज़ लोग हमारे लिए नेकियां छोड़ जाते हैं, मगर हम मादियत परस्ती में मशगूल उस नेकी को बोझ समझ लेते हैं। इम्तियाज़ अहमद भी सफीना बेगम के करने को एक नेकी छोड़ गए थे। एक मफलूकुल हाल बेसहारा लड़की। थोड़ा सा दिल बड़ा करती, अभिया को बहू मानकर उसके सर पर हाथ रखती तो वो ताउमर इनके कदमों में बैठी रहती। नेकी अलग और दुनियावी सुकून अलग, लेकिन वो इसकी दुनिया और आखिरत खराब करने में मसरूफ़ थी। मैंने कहा ना मामा, आप इस बात की टेंशन ना लें, मैं जल्द ही उसका कोई हल सोचता हूँ, मुइज़ ने कहा तो वो जल कर बोली। अभी और कितना वक्त चाहिए सोचने में? तलाक दे दोगे तो कौन सा तुम्हारा बाप कब्र से निकल आएगा तुम्हें पूछने? अल्लाह! मुइज़ माँ की ज़ुबान की ज़हरुल अफशानी पर दम पर खुद रह गया था। यहाँ रहना है तो इसने तो ऐसे ही रहेगी, मेरे घर में मेरी मर्जी से। और हाँ, इसका माहाना खर्चा मेरे हाथ में दे दो, हर महीने की पहली को दे दिया करूँगी नज़ीरा के साथ। वो बड़े आराम से कह रही थी। मुइज़ गहरी सांस भरता उठ गया। सफीना को तो कभी इम्तियाज़ अहमद ना समझा पाए थे, तो वो किस खेत की मूली था। सुन रहे हो ना, याद से दे देना, हक नहीं मारूंगी उसका, दे ही दूंगी उसे, मगर बदले में उसे भी पसीना बहाना पड़ेगा, फकीरों में बांटने के लिए नहीं है ये पैसा, वो जताने वाले अंदाज में बोली। ओके, आराम करें आप। मुइज़ उनकी बातों पर उलझता कमरे से निकल गया। सफीना बेगम ने तनफ्फुर से सर झटका था।
अबिया ने जिंदगी में लोगों का बहुत बुरा रूप देख रखा था। ऐसे में सफीना बेगम तो किसी गिनती में ही नहीं थी। मगर वापस आकर जब जब मुइज़ के साथ अपने रिश्ते के हवाले से वो सफीना बेगम का रवैया सोचती तो इसका दिल कुड़लाने लगता। इसे नज़ीरा के साथ नथनी करने के बाद इन्होंने उसकी औकात बता दी थी। यही अहमियत वो इसे एक बहू की हैसियत से देती तो वो इस घर को जी जान से संवारती। मगर इधर तो हाल ये था कि ज़रा सी गर्द सही से साफ न होने पर नज़ीरा के साथ उसे भी डांट पड़ती। वो खाना खाए बिना ही बिस्तर पर गिर गई। उसे समझ नहीं आ रही थी उसकी पहले की ज़िंदगी काबिल रहम थी या अब की। उसके पास बैंक बैलेंस था, 10,000 माहाना खर्चा था। इसके बावजूद वो एक घर में मुलाजिम के तौर पर काम करने पर मजबूर थी। इसे अपनी मजबूरी पे हंसी भी आती थी और रोना भी। कमी थी तो सिर्फ हिम्मत की। ये कमी दूर होती तो वो सही मानों में माला माल थी। वो सालिया को याद कर कर के रोती। मुइज़ अहमद की नेकी याद करके हज़ारों दुआएं उनके नाम करती तो मुइज़ की बेइत्नाई पर आंखें भर भर आती। वो इम्तियाज़ अहमद की शुक्रगुजार थी। उनकी मग़फ़िरत के लिए कितनी ही दुआएं करती रहती। इन्होंने अपना कितना प्यारा बेटा उसके लिए चुना था। प्यारा? जी हाँ, ये अभिया मुराद के दिल की राम कहानी थी। अब वो जो भी करे, जैसा भी करे, अभिया एहसान फरामोश नहीं थी। वो जानती थी कैसे वक्त में मुइज़ अहमद उसकी जान बचा के लाया है था। मुइज़ अहमद के प्यारा लगने के लिए एक यही वजह काफ़ी थी। तुम जो कर लो, जैसा भी कर लो मुइज़ अहमद, मगर मुझे इस घर के एक कोने में जगह दे दो और बस। मैं सारी उम्र वहीं बैठती तुम्हें तकती, तुम्हारे लिए दुआएं करती ज़िंदगी गुजार दूंगी। आंसू बहाती वो ख्यालों में मुइज़ अहमद से महवे कलाम थी। आज नाजिया की मेहंदी की तकरीब थी। नीलम और इरम ने बतौर ख़ास इस फंक्शन के लिए डांस प्रैक्टिस कर रखी थी। वो सब लाउंज में नाश्ते के बाद बैठी पहनावियों के कपड़े पैक कर रही थीं जब ऑन सीढ़ियाँ उतरता चला आया। ऑन? इरम ने आवाज़ दी तो मतलब भीगते हुए सानिया मज़ीद तवज्जो के साथ कपड़े पैक करने लगी। वो उधर ही चला आया। आज आप मेहंदी में तुम मेरे साथ डांस कर रहे हो, समझे? और इरम का अंदाज बेहद शौक और बेतकल्लुफ़ाना था। कोई और वक्त होता तो ऑन इसकी खूब क्लास लेता, मगर उसे पहले ही ताईजान ने इरम को घिरका। भला बताओ, बहनों की शादियों में भाई नाचता अच्छा लगेगा क्या? मगर कज़न तो अच्छा लगता है ना? वो अपनी बात पे अड़ी थी। सानिया की समातें ऑन के जवाब की मुंतज़िर थीं, लाशऊरी तौर पर। हाँ, भंगड़ा तो कर ही सकता हूँ, मगर तुम्हारी तरह ट्रेन डांसर नहीं हूँ मैं। वो बड़े पुरसकून अंदाज में बोला। सानिया के दिल को झटका सा लगा। इसे ऑन से इस जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इरम के तो मानो दिल की कली ही खिल उठी। ओके, याद रखना, शाम को वादा कर रहे हो? वो चीखी। अगर तुम्हारे भाई होंगे तो मैं भी हाजिर हूँ। वो जाने को पलटा। शादी तो लाजमी होगा, तुम फिक्र मत करो और मुकरना मत। उसके बेताबी पर वो हंसता हुआ चला गया। सानिया ने दबी हुई सांस खारिज की। इसे गुस्सा भी आया और अफसोस भी हुआ। ऑन अपनी गलती मानने की बजाय मजीद ढिठाई दिखा रहा था। आपको भी यार डांडिया भंगड़ा वगैरह आता है? नीलम मुस्कुराते हुए पूछ रही थी सानिया से। नहीं, मैंने ये बेहूदगी कभी नहीं की। वो संजीदगी से कहकर अपना काम खत्म करती उठ गई और इसकी आवाज़ इतनी बुलंद तो ज़रूर थी कि सभी तक जा पहुंची। ताईजान ने नागवारी महसूस की, मगर सबकी मौजूदगी में महज उसे मुस्कुरा कर देखा। मगर इरम ने तो इसके तासुरात से खूब लुत्फ लिया और शायद मजीद भी लेना चाहती थी। की नहीं तो अब करके देख लो, ऑन के साथ भंगड़े का मज़ा ही कुछ और होगा। वो इसे चिढ़ा रही थी। तुम एंजॉय करना ना, हमारे यहाँ तो ये ना इस बदतहजीबी की इजाज़त देती है और ना मजहब। सानिया किस दिल से मुस्कुरा कर बोली है वही जानती थी। इरम ने सर झटका और मुस्कुरा दी। मैं कमरे में जा रही हूँ नीलम, प्लीज़ अगर माइंड ना करो तो मुझे एक कप चाय दे जाना। वो अब की बार इरम को सरासर नज़रअंदाज करते हुए नीलम से बोली और वहाँ से हट गई। बाज़ जगहों से हट जाना ही आपके लिए बेहतर हुआ करता है। इससे आप में बर्दाश्त भी बाकी रहती है और इज़्ज़त नफ्स भी। ग्रीन विला के लॉन में रात बड़ी शान और जगमगाहट के साथ उतरी। फरहान ने अपनी निगरानी में वसीउल अमान लॉन में सारी डेकोरेशन करवाई और लाइटनिंग भी। सरे शाम ही हलवा पूरी वाले और बारबेक्यू वाले आकर बैकयार्ड में अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। इनकी मसरूफियत जारी थी और अंदर घर में एक दिल फरेब सा हंगामा। नाजिया आपी तो मेहंदी के फंक्शन के लिए भी पार्लर से हल्का फुल्का तैयार होकर आ गई थी। दोपहर को नीलम ने ज़बरदस्ती अपनी दोस्त से सानिया को दोनों हाथों पे खूबसूरत सी मेहंदी लगवाई थी। वो अब भी मेहंदी की खुशबू सूंघ सूंघ कर नाक मुंह चढ़ा रही थी, मगर रंग बहरहाल बहुत खूबसूरत आया था। नीलम और इरम भी पार्लर से तैयार हो रही थी। ऐसे में सानिया ने साफ इनकार कर दिया था। मैं इतनी ज़्यादा लड़की नहीं हूँ, घर पे ही 2 हाथ मार लूंगी चेहरे पे। नीलम उसकी बात पर खूब हंसी। तीनों बहनें पार्लर चली गईं। ऐसे में अब सानिया को कमरे में तैयार होने की खूब आज़ादी थी। वो लोग तो जाने कब आए, तुम जल्दी से तैयार होकर मेरे साथ रिसेप्शन पे आ जाओ।
ताई जान निकसिक सी तैयार थी और अब सानिया को भी अल्टीमेटम दे दिया गया था। सानिया का मूड खराब था, मगर हालात उसके बस में नहीं थे। अपने बल पे होती तो अभी तक वापस कराची जा चुकी होती, मगर ऑन के साथ आकर तो जैसे इसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी। उसने बेदिली से अपने कपड़े निकाले, गुलाबी शॉपर में मेहंदी का जोड़ा, नीले में बारात का और पीले में वलीमे का। ये खाला की हिदायत थी, और मेहंदी का जोड़ा निकालते ही सानिया की आंखें फट गईं। वो बुटीक के कपड़े ले लेती जिन पे हल्की फुल्की कढ़ाई या डिजाइनिंग होती। घर में है होती तो अम्मी लॉन और लीलन के कपड़े खुद सी देती, मगर अम्मी के कहने पर खाला ने शादी के फंक्शन के लिए इसके तीनों जोड़े खुद ही डिजाइनर से बनवाए थे। सानिया से सिर्फ नाप ही मांगा, जो इसने लापरवाही से दे दिया। मगर अब जग जग करता लिबास सानिया की सांस रोक रहा था। फालसी रंग की लॉन्ग शर्ट पे बने काम में धनक 7 रंगों का इस्तेमाल था, और साथ में पिस्ता कलर का शरारा या पता नहीं क्या। वो झुंझुलाई, जी मैं तो आ रही थी फ़ोन करके खाला जान की खूब खबर लें। ये तो इसके काम और नाजिया आबी के जहेज और बड़ी के कपड़े ज़्यादा लग रहे थे। इसने जल्दी से दूसरे शॉपर भी बेड पर उल्टे। बारात का जोड़ा भी काफ़ी कामदार था। हाँ, वलीमे का जोड़ा शायद इस पर तरस खाकर ज़रा हल्का रखा गया था। वो सर पकड़ के बैठ गई, यानी कि हद थी। अब वो अपनी मर्जी से तैयार भी ना हो सकती थी। दरवाज़ा बजा था। सानिया, जल्दी करो, मेहमान आना शुरू हो गए हैं। ताई जानती सानिया को बादल ना ख्वास्ता वही कपड़े पहनने पड़े। झुंझुलाती हुई वो कद आदम आईने के सामने आई और बाल खोलने लगी। फिर सामने निगाह पड़ी तो लहजा भर बाल को खोलते इसके हाथ सुस पड़े। खूबसूरत कामदानी लिबास, मेहंदी से सजे नाजुक हाथ और शानों पे फिसलते स्याह रेशमी बाल। वो कोई और ही सानिया थी। ला हौला वला कुव्वत। वो शदीद नरगिसियत का शिकार होने लगी थी, मगर ये तो तय ही था कि वो अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसे लशपश कपड़े पहनने लगी थी। बैग में खाला जान ने ज्वेलरी का छोटा सा बॉक्स भी साथ रखा था, जिसमें इसके तीनों जोड़ों के साथ की मैचिंग ज्वेलरी थी और बारीक हीर वाली खूबसूरत सैंडल्स। तैयार होते हुए वो खाला जान तो क्या पूरे जहान से ही नाराज थी, और सबसे ज्यादा गुस्सा और नाराजगी से अपनी जात से थी। क्या था जो आने से पहले एक बार ही फंक्शन के सामान वाला बैग चेक कर लेती। इसका जूली पहनने का कोई इरादा नहीं था। वो बेदिली से शानों से आते नीचे स्याह बालों को ब्रश करने लगी। नीलम ने दरवाजा खटखटाकर इसे पुकारा तो इसने फिर से अपने हुलिये पर शर्मिंदगी महसूस करते हुए हिचकिचाकर दरवाजा खोला। नीलम और इसकी खालाजाद थीं। वाओ! नीलम की आंखें फैली। इसने पुरसताइश नजरों से इसे सरता पा देखा। क्या कमाल का ड्रेस है आपी, बहुत प्यारी लग रही हैं। नीलम ने खुले दिल से तारीफ की तो वो और कंफ्यूज होने लगी। ये तो ऐसे ही खाला जान ने बनवा दिया, वरना मैं तो नहीं पहनती। खचालत से उसने अपनी सफाई पेश की। अरे आजकल तो अनमैरिड भी पहनती हैं इससे हैवी ड्रेसेस। वो बेड पर बिखरे कपड़े और अब जूली का मुआयना करते हुए कह रही थी। लाएं मैं आपके बाल बना दूं। नीलम की खालाजाद किरण ने आगे बढ़ते हुए अपनी खिदमात पेश की। अरे नहीं, ऐसे ही चुटिया बना लूंगी या कैचर लगा लूंगी। वो गड़बड़ाई। इस लिबास पे आप चुटिया तो नहीं बना सकती। वो इसके हाथ से ब्रश लेती मुस्कुराई, इसे स्टूल पर बिठाया और बड़ी तेजी से हाथ चलाकर फ्रंट पे हल्की सी बैक कॉम्बिंग करने के बाद इसने बाकी बाल खुले छोड़ दिए। नीलम ने इसके कानों में इयररिंग्स डाल दिए। माशाल्लाह आपी, आपको तो मजीद किसी की तैयारी की जरूरत ही नहीं। नीलम वाकई बहुत साफ और खुले दिल की लड़की थी। बेसाख्ता तारीफ करती तो झूठ का शाइबा तक ना होता था। मैं पहले ही नर्वस हो रही हूँ नीलम, ये कपड़े बहुत हैवी हैं। वो बेबसी से बोली। मेरा गाउन देखें, इतना ही हैवी काम है इस पर। वो लापरवाही से बोली और मेकअप किट किरण को थमाई। इसी ने सानिया के चेहरे पर अपने कमालात दिखाने शुरू किए। सानिया के एहतजाज पर वो मुस्कुराई। ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस आई मेकअप और लाइट सी लिपस्टिक। इसने वाकई बड़ी महारत से सानिया जैसी ऊल जलूल को कैटरीना कैफ बना दिया था, बकौल इरम के। किरण उसके सामने से हटी तो सानिया ने अपने आप को बेख्तियार ही आईने में देखा था। अब जल्दी से सैंडल्स पहन के बाहर आ जाए, मेहमान बाहर आ चुके हैं। नीलम ने किरण को निकलने का इशारा करते हुए जल्दी से सानिया से कहा, पर जाते जाते वो पलटकर सानिया तक आई। अल्लाह जब दो बहुत अच्छे लोगों को आपस में किसी रिश्ते में बांध देता है तो दोनों को इस रिश्ते की खूबसूरती का एहसास करना चाहिए और एक दूसरे का मुकम्मल ख्याल। ऑन भाई से इतनी दूर मत जाएं कि दोबारा इनसे करीब आने के लिए आपको कोशिश करनी पड़े। वो धीमे मगर संजीदा अंदाज में बोली। सानिया हवन्नक से इसका मुंह देख रही थी। मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान शैतान मुख्तलिफ शक्लों में आता है। आप इस दरमियान को खाली ना छोड़ें प्लीज़। वो चली गई थी और सानिया अकेली रह गई थी, या फिर इसके गिर्द चीख फेरियां खाती नीलम के अल्फाज। तो क्या मेरी जिंदगी में शैतान इरम की शक्ल में? वो लाहौल पड़ती अपनी सोच को जहन से झटकती उठी और सैंडल्स में पाँव डालते हुए बिना आईना देखे ही बाहर निकल गई।
लॉन में रंगों बू और कहकों का तूफान बरपा था। लॉन के सिरे पे खड़ी वो जिंदगी में पहली बार ऐसी नर्वसनेस का शिकार थी। कुछ फासले पे अपने दोस्तों के झुरमट में खड़ी इरम ने हैरत और हसरत के मिले जुले तासुरात के साथ सानिया का ये रंग देखा था। कभी ना सजने वाली, कभी सजें तो बहुत सजीले लगते हैं। इरम ने देखा। नीलम ने लपक कर सानिया का हाथ थामा और इसे पंडाल में ले गई और सबसे फर्दन फर्दन तारुफ करवाने लगी। एक तो ये नीलम की बच्ची। इरम ने दांत पीसे थे। वो दोस्तों से माजरत करती सानिया की तरफ आई। आहा, शुक्र है तुमने भी कुछ लिया बदला अपना। वही तंजिया अंदाज, जलने की बू। सानिया ने बेसाख्ता नीलम की तरफ देखा। है ना इरम, मैं भी यही कह रही थी आप ही से। आज तो ऑन भाई की खैर नहीं। वो शरारत से बोलती इरम का मुंह कड़वा कर गई, जबकि सानिया झींप सी गई। फजूल बातें मत करो। इरम ने नीलम को झिड़का। क्यों भाई, फजूल क्यों? मनकूहा है इनकी। इनकी तो हर तैयारी ऑन भाई के नाम की होनी चाहिए। वो शानिया चका कर बोली। ऑन के मामले में इरम का नजीदापन नीलम को बिल्कुल भी नहीं भाता था। सो वो बहन होने के बावजूद अम्मी और बाकी घर वालों की तरह इरम की बेवकूफ़ी में उसका साथ नहीं देती थी। तैयारी उसके लिए होनी चाहिए जो इसे देखे, सराहे। ज़बरदस्ती के रिश्तों में कंप्रोमाइज़ की कोशिश तो हो सकती है, रजामंदी नहीं। इरम का तंज कड़ा था। नीलम तो अपने दोस्तों में चली गई, मगर सानिया के पास बोलने को कुछ नहीं था। इरम इसके पास आ खड़ी हुई। सानिया ने इसके चेहरे पर नजर डालकर उसके अज़ाइम का अंदाजा लगाने की कोशिश की थी। वो मुसलसल नेक्सी का दरवाज़ा खटखटा रहा था, पहले आहिस्ता, फिर ज़रा तेज़, और अब उसने डोरबेल पर हाथ रख दिया, मगर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। गहरी होती शाम और नेक्सी पे छाई अजीब सी खामोशी। टीवी की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मुइज़ गुस्से की कैफियत में यहाँ आया था, मगर ये गुस्सा गुजरते वक्त के साथ बतदरीज तशवीश में बदलता जा रहा था। वो तेज कदमों से चलता वापस घर गया और एनेक्सी की चाबी लेकर आया। दरवाज़ा खोलते हुए उसका दिल मुख्तलिफ खदशात की आमाज का बना हुआ था। लाउंज में लाइट जल रही थी। वो मोहतात अंदाज में चलता उसके बेडरूम की तरफ बढ़ा। वहाँ की लाइट भी ऑन थी और वो चादर ओढ़े घुटने सीने से लगाए सिमटी हुई थी। मुइज़ ने नागवारी से उसे देखा। ऐसी भी क्या बेहोशी। वो इसका नाम नहीं लेना चाहता था। ए, उठो। बदतहजीबी से उसे बुलाया, मगर इतनी ऊंची आवाज ने भी उसे हिलाया जुलाया नहीं था। अबीहा, उसने जोर से पुकारा, फिर जरा सा झुककर कुछ अंदाजा लगाना चाहा। इसका तनफ्फुस तेज और चेहरे की रंगत तप रही थी। या अल्लाह, वो कदरे झंझलाहट में मुब्तला हुआ, फिर फकत 2 उंगलियां उसके माथे पर रखी तो इसे हस्बे तशवीश बुखार में तपा पाया। वो बिल्कुल बेसुध थी। मुझे से लब भींचे। इंसानियत के दर्जे से जरा भी नीचे आता तो इसे मरने देता, मगर उसने नजीरा को बुलाया। जाके बीबी को चेक करो, तबीयत खराब है शायद। वो एनेक्सी के बाहर ही खड़ा था। नजीरा सर हिलाती अंदर गई और थोड़ी ही देर बाद वापस आई तो तशवीश में मुब्तला थी। हाँ जी, ओ तो समझो बेहोश पई है। तुम ऐसा करो, इसे होश में लाने की कोशिश करो। मैं गाड़ी एनेक्सी तक लाता हूँ, इसे डॉक्टर के पास ले जाना है। अच्छा जी। वो गाड़ी लेके नेक्सी तक आया। तब तक नजीरा किसी तरह इसे उठाकर अपने सहारे दरवाजे तक ले ही आई थी और अब हाँफ रही थी। वो नजीरा को साथ ही ले गया था। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगा के दवाएं दी थी। टेंशन फ्री रखें इन्हें, डॉक्टर ने कहा। फिर जरा लम्हा भर को रुका और मुइज़ से पूछा, मिसिज हैं आपकी? मुइज़ ने बौखला के नजीरा को देखा, मगर इसकी सारी तवज्जो काउच पे नींद दराज बेहोशी की कैफियत में उसके कंधे पर सर के बैठी अबिहा पर थी। इसने फकत खामोशी से इस बात में सर हिलाया। ख्याल रखें इनका, दूध और फ्रूट्स का इस्तेमाल कराएं। डॉक्टर ने दवाइयों का पर्चा उसकी तरफ बढ़ाया तो स्पाट चेहरे के साथ नजीरा को इशारा करता उससे पहले ही कमरे से निकल गया। डॉक्टर ने हैरान होकर बेसुध पड़ी बीवी और बेतनाई से भरपूर शौहर के अंदाज को देखा था। तुम तो कील कांटे से लेस होकर मुकाबले पे उतर आई हो। इरम का लहजा तज़ीक अमेज था। सानिया भग से उड़ी। व्हाट डू यू मीन? उसे शदीद गुस्सा आया। तुम्हें नहीं लगता कि बचपन की शादियां एक नफसियाती बोझ बन के रह जाती हैं बड़े होकर? वो बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछ रही थी, सीने पे हाथ लपेटे खड़ी जैसे वो इसके मुकाबले पे थी। सानिया की पेशानी तप उठी और इससे पहले कि वो भड़क कर कुछ बोलती, पीछे से ऑन आया और साथ ही सानिया के शानों के गिर्द बाजू फैलाते हुए बेतकल्लुफी से बोला, कमाल है यार, सारे जग में ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। वो तो नीलम ने बताया कि जो कैटरीना कैफ लगे वही आपकी बेगम है, तो पता चला। चलो जरा कुछ तस्वीरें बनवा लें यादगार। वो नॉन स्टॉप बोला था। सानिया को इसके अंदाज ने लम्हा भर को तो भुंचका दिया था। पहले इरम की गुफ्तगू, ऑन से कल होने वाली मुंहमारी और अब इसका ये बेतकल्लुफाना अंदाज। सानिया का दिमाग एकदम से उल्टा था। ये क्या इन दोनों ने मिलकर इसका ड्रामा लगा रखा था? इंसान जब जब्त की
तनावें छोड़ता है तो हमेशा भूचाल ही आया करता है, मस्बत या फिर मनफी। सानिया ने एक झटके से ऑन का बाजू पीछे हटाया। ऑन के मुस्कुराते लब सिकुड़ गए। वो पंडाल में दाखिल होने लगा था जब इसने इरम को सानिया के साथ फजूल गुफ्तगू करते सुना था। सानिया से तमाम तर नाराजगी पसे पश डालकर वो महज सानिया की इज्जत नफ्स बहाल रखने को फिर से इसके बचाना आ खड़ा हुआ था, मगर शायद सानिया के मुतालिक इसके अंदाजे गलत साबित हुए थे। ये खड़ी है ना फारिग, तुम्हारी राहों में फूल बिछाने को तैयार, इसके साथ बनवा लो, मुझे शौक नहीं है, वो चटक कर बोली। इरम के होंठों पर महजूज सी मुस्कुराहट फैली, जैसे सामने बहुत मनपसंद सीन चल रहा हो। कम ऑन यार, अब तक नाराज हो। ऑन ने अभी भी बात को संभालना चाहा, मगर सानिया हवास में होती तो इसका अंदाज समझती ना। ये नाराजगी से बहुत ऊपर की बात है ऑन, और प्लीज इस वक्त मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहती। वो बेहद रुखाई से कहती स्टेज की तरफ बढ़ गई। चंद लम्हों के लिए तो ऑन सुन सा खड़ा रह गया। वो जिसकी इज्जत बढ़ाने आया था, वो इरम के सामने इसको 2 कौड़ी का साबित करके चली गई थी। और अभी भी तुम उसके मुतल्लक गलत फहमी बल्कि खुश फहमी का शिकार हो। ऑन ने फिलफौर अपने आप को संभाला, फिर मुस्कुरा कर बोला, तुम नहीं समझोगी, ये बीवियों वाले नखरे हैं, मगर मैं जानता हूँ कि उसे कैसे मनाना है। वो वापस पलट गया। साकित खड़ी इरम ने पांव पटके। पता नहीं सानिया की बच्ची ने इसे कौन सी गीदड़ सुंघा रखी थी। मूवी लाइट की रोशनी में नाजिया आप ही बड़ी प्यारी लग रही थी। इनकी दोस्तों ने स्टेज पर लाकर फूलों से सजे झूले में बिठा दिया तो सभी स्टेज के गिर्द जमा हो गए। तेल, मेहंदी, हंसी मजा। वो भी नाजिया को तेल और मेहंदी लगाने के बाद मिठाई खिला के उठी थी। आप ही प्लीज, आपके कमरे में मैं गजरों का पैकेट भूल आई हूँ, वो तो ला दें। नाजिया के पास बैठते हुए नीलम ने इल्तजाइया अंदाज में कहा तो वो सर हिलाती अंदर की तरफ बढ़ गई। नीलम के होठों पर महजूज सी मुस्कुराहट फैल गई थी। मुइज़ ने गाड़ी गेट के अंदर की तो सामने ही दरवाजे पर सफीना बेगम को खड़ा देख उसके हाथों के तोते उड़ गए थे। पिछली सीट पर नज़ीरा और अबिहा थी और अबिहा पहले की निस्बत बेहतर हालत में थी। सफीना बेगम मुइज़ को अंदर आते देख रही थी, मगर वो हक्का बक्का रह गई जब मुइज़ गाड़ी पोर्च में रोके बिना आगे नक्सी तक ले गया। वो हैरान सी सीढ़ियाँ उतरकर पोर्च में और तमाशा देखने लगी। मुइज़ तो गाड़ी में ही बैठा रहा, अलबत्ता पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खुला और नज़ीरा बाहर निकली और इसने सहारा देकर अबिहा को नीचे उतारा था। सफीना बेगम के दिल को जोर से धक्का लगा, मगर फिर वो फौरन ही वहां रुके बिना सीढ़ियां चढ़कर दरवाजा खोलती अंदर चली गईं। वो इस वक्त मुइज़ का सामना नहीं करना चाहती थी। ओफो, कहाँ रख दिए नीलम की बच्ची ने गजरे। वो कमरे में आकर देखते हुए खुद कलामी कर रही थी। जब इसने पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी तो वो बेख्तियार पलटी। वो ऑन अब्बास था। साने नागवारी से देखा, ये क्या बदतमीजी है ऑन, दरवाजा क्यों बंद किया है तुमने? वो आगे बढ़ते हुए तंजिया लहजे में बोला, क्योंकि तुम सबके बीच बात करने के काबिल नहीं हो। हाँ, तो मैं नहीं हूं ना तुम्हारे काबिल। ये बात तो तुम अव्वल मुलाकात से कह रहे हो, और यही बात मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि बड़ों की खामखा की फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, और ना ही मेरी। सानिया ने भड़क कर कहा, क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर हमारा ताल्लुक खराब कर रही हो? ऑन ने उसके सामने आकर खड़े होते हुए कहा। वो पीछे बंद अलमारी के पट से लग गई। मैं इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहती ऑन, हटो आगे से, मैं काम से आई थी यहाँ। सानिया ने उसे तेवर दिखाया। नीलम से मैंने ही कहा था तुम्हें किसी बहाने से भेजने को। इतनी अच्छी तो हो नहीं कि महज मेरा नाम सुनकर भागी चली आई। ऑन ने तंज किया, मगर सानिया तो सरता पा जल उठी। हाँ, तो जो अच्छी है उसका पता तो देकर आई थी ना तुम्हें। तस्वीरें तो बनवा ही ली होंगी, अब जाके भंगड़ा भी डाल लो उसके साथ। गुस्से की आग जब इंसान के अंदर भड़कती है तो इसकी खुश मिजाजी, खुश गुफ्तारी और अकल को भड़बड़ जला देती है। सानिया भी उसी स्टेज पर थी। तुफ है तुम पर सानिया, मैं तुम्हारी नादानियों को इग्नोर करता मुसलसल तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हारे साथ खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम मेरी नरमी को मेरी बुज़दिली मत समझो। वो फनकारा था। सानिया कदरे बरा फरोख्ता हुई। एक तो दोनों कमरे में अकेले थे, दूसरे दरवाजा भी ऑन ने लॉक कर दिया था। ऐसे में कोई इधर आ निकलता तो क्या क्या अफसाने न बनते। इसे तो नीलम का सोचकर भी शर्म आ रही थी। जाने इसने क्या क्या सोच डाला होगा इन दोनों के मुतल्लिक। और तुम भी मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। सानिया ने सख्त लहजे में कहना चाहा तो ऑन ने दोनों हाथों से इसके शानों को जकड़ा। बीवी हो तुम मेरी, रुखसती नहीं हुई तो क्या हुआ, मगर हुकूक फ़राइज़ में जकड़ी हुई हो। रात की तुम्हारी फजूल गुफ्तगू के बावजूद मैं फ़कत तुम्हें सहारा देने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हुआ, और तुमने अपना रवैया देखा है। वो इसे हल्का सा झंझोड़ कर गुस्से से बोला तो सानिया ने बेखौफी से अपनी आंखें उसकी आंखों में गाड़ दी।
میں نے تو نہ تم سے سہارا مانگا ہے کبھی، اور نہ ہی مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے. ناؤ لیو می. اس کے انداز میں بے رخی تھی. تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اون کو تعصب ہوا. ثانیہ نے اس کے ہاتھ اپنے شانوں اوپر سے ہٹائے. ہاں، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. تمہیں میری طرف سے اجازت ہے. تم جب چاہے ارم سے شادی کر سکتے ہو. مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں. وہ تلخی سے کہتی اس کی سائڈ سے ہوتے دروازہ کھول کر جا چکی تھی. اور اس کے انداز اور اس کے لفظوں اور سوچ سے اس قدر دل شکستہ ہوا کہ مزید اس سے کچھ کہنا یا روکنا اسے بے فائدہ اور فضول ہی لگا تھا. اور باقی کے فنکشن میں بلا ارادہ ہی ثانیہ کی نگاہوں نے بار بار اون کو کھوجا، مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دیا تھا. نیلم اور ارم کے بھنگڑوں میں اور ڈانس کے دوران بھی نہیں. پتہ نہیں کیوں، مگر ثانیہ کی آنکھ کا ایک گوشہ نم ہوا تھا. منتظر ہی رہا کہ سفینہ اس سے کچھ پوچھیں، مگر جب رات وہ انہیں خدا حافظ کہنے گیا تو وہ دبا کھا کر لیٹ چکی تھیں. زہرا ان کے پاس بیٹھی کتاب کی گردانی کر رہی تھی. تھوڑی دیر وہ زہرا سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، مگر جب سفینہ نے مندی آنکھیں کھول کر ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تو وہ خاموشی سے اٹھ گیا. ضروری نہیں کہ ہر طوفان سمندر کے اوپر ہلچل مچاتا دکھائی دے. بظاہر پرسکون دکھائی دینے والا سمندر کے سینے میں بھی طوفان ہو سکتا ہے. سفینہ بیگم نے محیط سے الجھنا مناسب نہیں سمجھا تھا، مگر صبح نذیرہ کے آتے ہی اس کی کلاس لگ گئی تھی. وہ لڑکی کہاں ہے نیکسی والی؟ انہوں نے ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھتے ہوئے پوچھا. اوتا جی بیمار ہیں. نذیرہ نے دانت نے کوسے. سفینہ نے دانت پیسے. وہ تمہاری کیا پھپھی کی بیٹی ہے جو تم اس کا اتنا خیال کرتی ہو؟ نذیرہ گڑبڑائے اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولی. او جی، او چھوٹے صاحب ڈاکٹر کو لے گئے سی انہوں. میں کمی ذات انکار نہیں ہویا میرے کولوں. سفینہ بیگم تو سرتا پا بھڑ بھڑ جلنے لگی. سامنے لگی آگ کو تو کسی طریقے سے بجھا ہی لیا جاتا ہے، مگر ان دیکھی آگ جلائے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے اور اسے بجھانے کا کوئی طریقہ سجھائی نہیں دیتا. جاؤ تم اور ذرا اس لڑکی کو بلا کر لاؤ. اس کی طبیعت تو میں ٹھیک کرتی ہوں. سفینہ بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ اتنی جلدی اپنی جان خلاصی ہونے پر تیزی سے باہر کو لپکی. وہ شدید بخار سے اٹھی تھی، اب کمزوری محسوس کر رہی تھی. ناشتے کے بعد ابھی دوائی کھا کر اس کا ارادہ لیٹنے کا تھا جب نذیرہ پیغام لیے چلی آئی. ابیہ کا انگ انگ درد کرنے لگا. وہ پورے گھر کی صفائی ستھرائی جیسی مشقت کا سوچ کر ہی گھبرا گئی. تم نے میری طبیعت کا نہیں بتایا؟ ابیہ نے نکاہٹ سے پوچھا. کہا ہے جی، پر او تا تونوں بلاندی پئی ہیں. نذیرہ نے کہا تو اسے مارے بندے اس کے ساتھ چلنا ہی پڑا. اور نذیرہ ہمیشہ کی طرح ورتا حیرت میں تھی کہ نیکسی کے شاندار ماحول میں رہنے والی لڑکی کام والی بھی ہو سکتی ہے. وہ داخلی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہی تھی جب بیرونی گیٹ کھلا اور کوئی اندر آیا. نذیرہ رک کے دیکھنے لگی تو غیر ارادی طور پر ابیہ نے بھی پلٹ کر دیکھا. ابیہ کے تاثرات تیزی سے ہی بدلے تھے، مگر سامنے موجود شخصیت کو بھی کرنٹ لگا تھا.